नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गोराया में मोटरसाइकिल और स्कूटी में हुई भीषण टक्कर, 2 नाबालिगों की हुई मौत। मोहाली में जेसीबी के नीचे आने से 2 वर्षीय मासूम की गई जान। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जालंधर के गांव में सरहाली के तालाब में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इलाके में सनसनी फैली। और अब हलचल विस्तार से। हादसों की बढ़ती घटनाओं के बीच एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। गोराया थाने के गांव दोसांझ कला के पास बीती रात एक स्कूटी और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार 2 नाबालिग बच्चों की मौत हुई है, जबकि दूसरी तरफ के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गांव के पंच मनवीर सिंह ने बताया कि गांव के रहने वाले धीरज का बेटा समर और शमशेर सिंह का बेटा विक्रम अपने स्कूटर पर फगवाड़ा की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल फगवाड़ा से दोसांझ कला की तरफ आ रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के अगले पहिए उड़ गए। हादसे के बाद दोनों बच्चों को पहले फगवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना रेफर कर दिया। विक्रम की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि समर की हॉस्पिटल पहुंचते ही मौत हुई है। समर 8वीं क्लास का स्टूडेंट था और विक्रम 11वीं कक्षा में पढ़ता था। मौके पर पहुंची चौकी दोसांझ कला इंचार्ज जंग बहादुर ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल फिलौर भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारों को सौंप दिए जाएंगे और आगे की ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ में लाई जाएगी। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਚੌਂਕੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਮਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 16 ਸਾਲ ਤੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਚੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਧੀਰਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਤੀ 12/2/26 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਾ ਕਲਾਸ ਕੇ ਹੱਦ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ DMC ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ DMC ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਚਰੀ ਵਿੱਚ ਫਲੌਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸੀ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 38 ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
बहुत बहुत धन्यवाद। मोहाली के नया गांव स्थित सिंघादेवी इलाके में 2 साल के मासूम की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:15 बजे जेसीबी मशीन की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत नया गांव थाना पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। बताया ये जा रहा है कि जेसीबी का टायर बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही नया गांव पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर खरड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। मृतक बच्चे अदब के पिता मसूद ने बताया कि वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और वर्ष 2015 से परिवार सहित सिंघादेवी इलाके में रह रहे हैं। वो मजदूरी का काम करते हैं और हादसे के समय काम पर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही वो तुरंत घर पहुंचे। बेटे की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां अपने मासूम को याद कर बेसुध हो रही है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि लापरवाही से जेसीबी चलाने वाले चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मसूदन, कहाँ के रहने वाले? बिहार, यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? सिंगा देवी। सिंगा देवी। क्या हुआ यहाँ? लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारे बच्चे का? हाँ जी। कितने साल का था? 2 साल की। कैसे हुआ? जेसीबी से। अच्छा, यहाँ बच्चा खेल रहा था? हाँ जी। और जेसीबी वाले कैसे तेज रफ्तार में था? हाँ जी, तो उसने मोबाइल कान में लगा रखा था और दाब के चला गया। अच्छा, अभी बच्चा पूरा हो गया आपका? हाँ जी। क्या क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो? अब मैं क्या बताऊँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी पुलिस आ गई मौके पर, क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तो कह रहा है ले जाने के लिए। तो क्या कार्रवाई मांगते हो उस ड्राइवर के खिलाफ? ड्राइवर का अब मेरा बच्चा तो लौट के आएगा नहीं, अब क्या करें। ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੋਈ ਰਕੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਨਾਢੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬੋਡੀ ਪਤਾ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ कार्रवाई होगी। जालंधर के अधीन आने वाले गांव सरहाली में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के छप्पड़ से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान संतोष राम उर्फ बारू राम पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव सरहाली के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने छप्पड़ में शव तैरता हुआ देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चौकी जंडियाला की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल जालंधर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है। इस संबंध में गांव सरहाली के सरपंच हरमेश लाल ने बताया कि गांव के कुछ युवकों ने उन्हें फोन पर छप्पड़ के शव पड़े होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को भी सूचित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਰਾਮ ਸਨ ਆਫ ਗਿਆਨਚੰਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬਾਰੂ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ वो पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो बनती करनी। होशियारपुर रोड पर भिवानी नगर के पास एक पेंट फैक्ट्री में भयानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यह हादसा चिंतपूर्णी रोड पर स्थित एक औद्योगिक इकाई में हुआ। आग की लपटें इतनी ज्यादा भयानक थी कि दूर से ही धुएं का काला गुब्बार देखा जा सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत में जुटे दिखे। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री के अंदर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इसका आंकलन अभी जारी है। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली करा दिया है। ਆਪਾਂ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪਿਨ ਤੇਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਖੀਆਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਜਰ ਆਇਆ, 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਟੈਂਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਟਰ ਬੋਜਰ ਲੱਗਾ 14000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਮ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਅੱਗ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਆ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਡਰਮ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿਸ਼ਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਸ਼, ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 4 ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ? 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਹੈ ਅੱਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ नहीं है, माली नुकसान है जो है उन्होंने पता होगा। धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा गत दिनों से दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इन बयानों को निंदनीय करार कर दिए हैं। इसी को लेकर पूर्व के कैबिनेट मंत्री एवं विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर ने कहा कि आम परिवारों से उठकर मेहनत और कीर्त के साथ लोकतंत्र में आगे बढ़ना हर किसी का हक है। उन्होंने कहा कि जब मेहनतकश परिवारों के बच्चे जनता के भरोसे से विधायक या मंत्री बनते हैं तो पुरानी पार्टी के कुछ नेताओं को ये कामयाबी हजम नहीं होती, इसी कारण वे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति में शब्दों की बहुत अहमियत होती है। किसी भी जाति, धर्म, कार्य या सामाजिक संस्कृति के बारे में गलत और घटिया टिप्पणी करना लोकतंत्र की रूह के खिलाफ है। उन्होंने याद दिलाया कि तरनतारन चुनावों के दौरान भी कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा ऐसी दलित विरोधी भाषा इस्तेमाल की गई थी जिसने समाज में नकारात्मक संदेश दिया था। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। बड़ी सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबको पता है कि पिछले दिनी ਜਿਹੜੇ नेता ने कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने बहुत माड़ी शब्दावली वरती सी साढ़े बहुत ही मानयोग ईटीओ साहब के खिलाफ, मंत्री साहब के खिलाफ। मंत्री साहब के पिता जी ने बहुत मेहनत करके 10 सालों की किरत करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा के ईटीओ बनाया, वो बाद उन्हें रिजाइन किया, वो साढ़े MLA बने, मंत्री बने, सो एक रुतबे से पहुँचे ने। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ MLA ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ तक जा रहे हैं, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ अपना प्रताप सिंह बाजवा। अमृतसर की हाइट मार्केट में एक दुकान पर चोरी की बड़ी वारदात का ताजा मामला सामने आया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर शटर के ताले तोड़कर लगभग 1 घंटे तक दुकान के अंदर रहे और वहां पड़ी नकदी, मोबाइल फोन, दुकान में लगी LCD और दुकान में रखे गिफ्ट चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं ये सारी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया कि ये
इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है तो कुछ ही दूरी पर अमृतसर का प्रसिद्ध चौक भी है, जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात ये है कि चोर लगातार दुकान के अंदर रहा, लेकिन पीसीआर या किसी भी पुलिस कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिस कारण पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसलिए दुकान मालिकों ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त इलाके में रात की गश्त बढ़ाई जाए और दोषियों को जल्द से जल्द काबू किया जाए, ताकि ऐसी वारदातों को रोक लग सके। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर गलबात है कि परसों रात को 11:30 बजे ताला तोड़िया गया साड़ी दुकान का चोरों द्वारा, तो पौना घंटा रहे ने, पर अं इन्ना हैरान आ कि पौना घंटा चोर अंदर वड़िया रहा, शटर भी खुलिया रहा, किसी ने नहीं देखा, ना पुलिस वाला कोई लंघिया ना कोई पीसीआर वाला लंघिया, और वो अपना काम करके चला गया। सर वो साड़ी एक कैश लै गया, मोबाइल लै गया, LED लै गया, कुछ समान जड्डां दा आपां जिहड़े गिफ्ट दिंदे जड्डां नूं वो लै गया। किस चीज़ की दुकान है? साढ़ा खेतीबाड़ी का काम है जी, साढ़े कीड़े मार दवाइयां का काम है तो खाद का काम है। कल्ला एक नौजवान CCTV देख रहा जी, CCTV फोटोज असी पुलिस नूं प्रोवाइड कराते ने, हुण देखो पुलिस की कार्रवाई करती है। कोई CCTV आधारित तुसीं कोई जानू या कोई वाकया पे लग रहा है कोई इदां दा? देखो जी ये जिहड़ी सब्जी मंडी पुरानी सब्जी मंडी है हाल बाजार के बाहर, ये गैंगस्टरां दा ते चोरां दा अमलियां दा अड्डा बन चुका है। पुलिस जे इत्थे पक्का कोई नाका लगावे तां इन्हां कार्रवाइयां ते रोक पाई जा सकती है। मौका मिल गया पर अगर वेरीफाई करके फिर जो कार्रवाई कर देना हाले दरखास्त देनी ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ नहीं सानू पता जी। जालंधर के एक निजी होटल में हाथापाई की घटना सामने आई है। होटल में जमकर लात घूसे बरसाई गई, जिसके बाद देखते ही देखते होटल जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार होटल के पार्टनरों में ये झड़प हुई है, जहां आरोप लगाए जा रहे हैं कि होटल के एक पार्टनर ने दूसरे को जमीन पर गिराकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान होटल स्टाफ के कुछ सदस्य भी मारपीट में शामिल हो गए। इस हाथापाई में मालिक मरवाहा की पगड़ी उतर गई है, जिसके बाद मामला गर्म हो गया। घटना के बाद पीड़ित द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई, जहां पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तो वहीं CCTV फुटेज के आधार पर देखा जा सकता है कि कैसे व्यक्ति को फर्श पर घसीट कर ले जाया गया है, जिसके बाद अन्य लोग बीच बचाव में आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों को दूर किया गया और मामले को शांत किया गया। हालांकि लड़ाई की वजह भी फिलहाल सामने नहीं आई है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की शकरपुर टीम और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को पकड़ा। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मेरठ के असद गिरोह का सरगना अपने साथियों के साथ उस्मानपुर क्षेत्र में आने वाला है। जैसे ही 3 अपराधी बाइक पर आते दिखे, पुलिस टीम ने उन्हें सरेंडर करने को कहा। खुद को घिरा देखकर अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों अपराधियों को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। एक गोली ASI को छूकर निकल गई, तो वहीं तीनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन अपराधियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पंजाब सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम वॉर ऑन गैंगस्टर्स के तहत जिले में बड़े पैमाने पर स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए SSP सोहेल मीर ने बताया कि आज 3 बड़ी स्पेशल चेकिंग की गई, जिसका मुख्य मकसद लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना और गैंगस्टरों और क्रिमिनल लोगों पर शिकंजा कसना है। SSP सोहेल मीर ने बताया कि चेकिंग के दौरान पब्लिक जगहों जैसे शॉपिंग मॉल, जरूरी सड़कें और रेलवे स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खासतौर पर टारगेट किया गया था। इस दौरान गाड़ियों की तलाशी ली गई, लाइसेंस चेक किए गए, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि बसों और दूसरे सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी अच्छी तरह से जाँच की जा रही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पहले से ही किए गए थे। ऑपरेशन प्रहार 1.0 प्रहार 2.0 की सीरीज का हिस्सा है, जिसमें अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। इस ऑपरेशन दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में ड्रग्स और गैर कानूनी सामान भी बरामद किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चेकिंग अभियान कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि लगातार चलाया जाएगा। ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ
ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 2 ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ 1 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 350 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ 2 ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर्स एसोसिएट्स है उन्होंने गिरफ्तारी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी वैसे तो ट्रैफिक विभाग की है, लेकिन लोगों द्वारा फगवाड़ा की बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाने का भी ट्रैफिक पुलिस विभाग पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एसपी माधवी शर्मा ने उठा ली है। इसका ताज़ा उदाहरण आज उस समय दिखाई दिया जब फगवाड़ा के तहसील कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े वाहनों को हटाने के लिए एसपी खुद सड़कों पर उतरे। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अमन द्वेश्वर तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर वहां कार्रवाई की। इसके अलावा एसपी माधवी शर्मा ने पुलिस पार्टी के साथ इंडस्ट्रियल एरिया तथा छज कॉलोनी को भी दौरा किया और वहां से चेकिंग के दौरान 2 लोगों को राउंड अप किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी माधवी शर्मा ने बताया उन्हें सूचना मिली थी कि इस इलाके में स्नैचिंग और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राउंड अप किए गए 2 लोगों को वेरीफाई करने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एसपी माधवी शर्मा ने वहां लगी रेहड़ियों द्वारा किए गए नाजायज़ कब्जों के लिए उन्हें सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌਖ ਹੋਵੇ। ऑल इंडिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के नेता बलबीर सिंह मुच्छल की अगुवाई में एक वफ्द श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पहुंचा। इस दौरान कमेटी के सदस्यों की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार और मर्यादा को लेकर एक मांग पत्र जथेदार साहिब के नाम सौंपा गया, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों और पावन स्वरूपों के प्रकाशन में हो रही बड़ी गलतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान बलबीर सिंह मुच्छल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सबसे बड़ा खुलासा किया कि श्री रामसर साहिब में स्थित प्रेस में प्रकाशित हो रहे पावन स्वरूपों के पाठ में लगभग 4700 गलतियां हैं। उन्होंने दावा किया छपवाई गई मात्राओं की ये गलतियां सीधे तौर पर सिख आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की है कि रामसर प्रेस की छपवाई पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए। वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी आल इंडिया वालों श्री अकाल तख्त साहिब ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੋਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ 190 ਜਾਂ 95 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਅੰਗ ਜਾਂ 4 ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4700 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ वास्ते ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सत्कार कराया जाए। श्री सत्यनारायण मंदिर काजी मोहल्ला नजदीक गुरुद्वारा पंजपीर जालंधर में 44वें माघ मास महात्म महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। तो वहीं इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कथावाचक पंडित गुलशन शर्मा द्वारा श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ संपन्न करवाया गया। हवन यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में सिद्ध शक्तिपीठ अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति एवं उनकी धर्मपत्नी उपस्थित रहे। वहीं पंडित गुलशन शर्मा, पंडित विपिन शर्मा एवं पंडित किशन शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन संपन्न करवाया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं से आहुतियां डलवाई गई। इस दौरान संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालुओं ने यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए विशाल लंगर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर चेयरमैन संजीव हांडा, प्रधान साहिल नारंग, प्रवीण मांगो, सत्य नारायण कुमार, सुशील मांगो, सुनील अरोड़ा, बलविंदर मिंडा, प्रवीण कोहली, विपिन कुमार शंकर, टोनी विज, सोहरब आनंद, जसपाल सिंह, नरेश सेठी, राजन सोबती, हनी कंबोज, डॉक्टर अनिल ज्योति, गौरव शर्मा, दीपक जोडियाल, कैशियर विकास तलवार, बबलू चावला, विक्की शर्मा, सरदार हरपन सिंह सोनू तलवाड़, MC जय हांडा, लव महाजन, जतिन शर्मा, मोहनगत, राजेंद्र गुप्ता, अनिल विशिष्ट, राजेश मिगलानी, अनिल कुमार सहित श्री सत्यनारायण मंदिर प्रबंधक कमेटी काजी मोहल्ला के सभी सदस्य उपस्थित रहे। वहीं धार्मिक आयोजन ने क्षेत्र आध्यात्मिक वातावरण को संचार किया और श्रद्धालुओं के आयोजन की सराहना की। ਅੱਜ ਮਾਘ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਕਾਜੀ ਮਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ कि सारे ही समाज के उत्ते कृपा बनाए रखन। जय श्री राम। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव शरण मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में हवन यज्ञ एवं झंडा रस्म का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जी द्वारा विधि विधान से हवन यज्ञ के साथ की गई। हवन के दौरान उपस्थित यजमानों से वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच आहुतियां डलवाई गई और समस्त मानव कल्याण एवं विश्व शांति की कामना की गई। वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। हवन यज्ञ की पूर्ण होती के उपरांत मंदिर परिसर में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ झंडा रस्म अदा की गई। इस अवसर पर शिव शरण मंदिर कमेटी के प्रधान दलजीत सिंह धतू, रोमी खन्ना, सागर लोहारिया, नवीन शर्मा, प्रदीप सन, रोहित अग्रवाल सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री हरि मंदिर लोहारिया मोहल्ला बस्ती गुंजा से भव्य शोभा यात्रा श्री हरि मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता मंदिर के संचालक एवं कमेटी के अध्यक्ष पंडित विपिन शर्मा ने की। इस भव्य यात्रा का शुभारंभ मेयर विनीत धीर, सिटीजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के MD करण शर्मा, पूर्व CPS KD भंडारी, गोसेवक चंद्रकांत, पार्षदपति सौरभ सेठ के कर कमलों से हुआ। शिव भक्तों ने लंगर लगाकर तथा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिससे शोभा यात्रा का सारा मार्ग विश्व भोले के रंग में रंगता हुआ नजर आया। शोभा यात्रा के सारे मार्ग में और 8
ग्रुप की तरफ से भोले की बरसात की झांकियां देखने योग्य रही। शोभा यात्रा में आए हुए सभी शिव भक्तों को मंदिर के संचालक एवं कमेटी अध्यक्ष पंडित विपिन शर्मा ने सम्मानित किया। इस मौके पर चेयरमैन राकेश, शांतिदूत उप चेयरमैन करण शर्मा, मुकेश मल्होत्रा, ऋषि बहल, कुरनाल शर्मा, दिलीप पांडे, रोहित गंभीर, प्रदीप शर्मा, नीरज राजपूत, गौरव वधेला, नारायण राजपूत, जसविंदर भोला, पुनीत राजपूत, भरत कुमार, अनिल राजपूत, कमल राजपूत, अमित वर्मा, प्रिंस राजपूत, भाविक शर्मा, हिमांशु राजपूत, सहवाग कुमार, देवराज राजपूत, पंकज राजपूत, राजकुमार पप्पू, योगेश मल्होत्रा, पंकज मल्होत्रा सहित समूह इलाका निवासी शामिल रहे। बोल शंकर भगवान की जय। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਭਵਯ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ क्योंकि आस्था का विषय है तो आदि कैलाश वैसे तो यात्रा हो नहीं सकती भगतों की, तो इत्थे उन्होंने असीं खास तौर पर स्वरूप लियाते भगतों ताकि उन्हों का आशीर्वाद मिले। अज की शोभा यात्रा की अगवाई वो कर रहे हैं, उहदे नाल ओम आर्ट ग्रुप तो और विशेषकर मंदिर की कमेटी वालों बहुत सुंदर सुंदर झांकियां बनाई गई हैं। जगह जगह पर अज लंगर लगाए गए हैं। मैं सारे नगर वासियों का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। साडे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग धीर साहब विराजमान ने, उन्हों का भी और सारे साडे चौहान साहब बैठे ने, साडे खन्ना साहब ने, सारिਆਂ ਦੇ मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हों ने शोभा यात्रा के अपना एडा उत्साह दिखाया। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय शंकर सारिਆਂ श्री हरि मंदिर वालों जिहड़ी शोभा यात्रा विशाल शोभा यात्रा महाशिवरात्रि के उपलक्ष दे विच हर साल निकाली जा रही है। उसदा आयोजन अज बड़ी धूमधाम दे बड़ी श्रद्धा के उत्साह के नाल पंडित विपिन शर्मा के नेतृत्व दे विच हो रहा है। और ये शोभा यात्रा का जिहड़ा स्वरूप है मैं देख रहा हर साल पिछले साल के नालों वध चढ़ के संगत का उत्साह, भगतों का उत्साह, भगवान शंकर को समर्पित उत्साह जिहड़ा देखण योग हुंदा है। और इस मुबारक दिन ते सारिਆਂ ਨੂੰ मैं शुभकामनावां दिना, बधाई दिना। आने वाले महाशिवरात्रि पर्व दी बहुत बहुत बधाइयां। देवाधिदेव महादेव जी के पावन पर्व महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर छिन्न मस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर जालंधर में परम पूजनीय देवी माँ जी की अंतिम कृपा से भोलेनाथ के संकीर्तन रूपी प्रभात फेरी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण छा गया और श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ जी का गुणगान करते हुए जय घोष लगाए। वहीं प्रभात फेरी के दौरान भगवान भोलेनाथ की बारात की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई जिसने उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। भोलेनाथ के भजनों और संकीर्तन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी विशेष तौर पर उपस्थित हुए और देवी माँ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी की ओर से उन्हें मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मंदिर की समूची प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर पे दो हाथ है, सर पे दो हाथ है, हर कदम भोलेनाथ
जब मेरे साथ हैं हर कदम बोलना जब मेरे साथ हैं जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम डर की क्या बात है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू के निवास स्थान पर प्रभात फेरी का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भजन मंडली ने शिव बाबा के भजनों का गुणगान किया और हरविंदर पप्पू और उनके परिवार द्वारा आरती की गई, जिसके उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर बलदेव अटवाल, गीतांजलि, ऋतिका लक्ष्य, हेजल, रणदीप कमल, श्यामा, ममता, उमा, सुरेंद्र सिंह, अभिनव बांके, बिहारी मंडल के प्रधान राहुल जिंदल, मनीष जिंदल, बॉबी जिंदल, अंकुश बंटी, संजय मित्तल, मोहित, अंकुर गोयल, शुभम, अमित गोयल आदि ने भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जो कि हर साल की तरह इस साल भी जो कि भोलेनाथ की प्रवास सारे गेट के ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ भोलेनाथ ਦੇ जो कि साडे मोदी सूट साहब काला जी प्रधान और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ भोलेनाथ की किरपा ਇਹਨਾਂ ਦੇ सारा ਇਹ साल जो कि सेवा करते हैं। मैं अपने वालों और अपने परिवार वालों काले भाई और ਇਹਨਾਂ ਦੀ सारी टीम को ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ और सारे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इसी तरह जो कि कल जो कि भोलेनाथ की शोभा यात्रा रामबाग जो कि मेन साढ़े सारे का दरबार को निकलनी है। मैं अपने वालों सारे एक बेनती करना कि सारे ने होम होम आके काले ना होने की सारी चीज़ का साथ देना है। इसी तरह जो कि 15 तरीक को भोलेनाथ की शिवरात्रि का दिन जो कि मेला मनाया जाना और सारी दुनिया को आके दूरों दूरों आशीर्वाद लेती है। इसी तरह भोलेनाथ पूरी जिंदगी सारे ने मेहर भरिया हाथ रखे और सारे भोलेनाथ दर्शन दे और सारे तंदुरुस्त बख्शे। और मैं अपने वालों एक बेनती करना चाहता कि साढ़े हेलो विकी जिंदल जी जो कि बांके बिहारी मंडल वालों 16 तरीक को शोभा यात्रा शाम बाबा जी की शुरू हुई बड़े मंदिर 10 नंबर मल्ले को। और मैं अपने फिर सारे भोलेनाथ जी वालों शाम बाबा जी को बेनती करता इस तरह ही 26 तरीक को जो कि गंगा बड़े है उधर शाम बाबा जी के और साला साल वाला जी दर्शन करते हैं। और इसी तरह गुणगान करना मैं अपने सारे भाई करता और विकी जिंदल जी जो प्रधान बांके मंडल न्याली उन्होंने भी लाख लाख बधाई देना। 16 तरीक को जो फेरी शुरू होनी जा रही है और इन सारे ने हुक्म के साथ देना। मैं सारी टीम का रंजीत का और काला जी का खास तौर पर जड़े के भी करते हैं बेड़ा सारे को मैं लाख लाख बधाई देना और 2 मिनट लिए काला जी को। राकेश कुमार जैन, जिनका आज आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार जालंधर के हरनाम दासपुरा स्थित शमशान घाट में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राकेश कुमार जैन को मुखाग्नि उनके पोते विजिनेश ने दी। इस मौके पर विमल जैन, सुनील जैन, पीयूष जैन, पुनीत जैन, पूर्व CPS KD भंडारी, सनी जैन, रवि जैन, मुकेश जैन, सुंदर जैन, आयांश जैन व समस्त पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय राकेश कुमार जैन को नम आंखों से विदाई दी। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में फगवाड़ा में शिवसेना पंजाब और शिव मंदिर पकाबाग के संयुक्त नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकालेगी। ये शोभा यात्रा भगवान शिव का गुणगान करते हुए अलग अलग क्षेत्रों व बाजारों से निकली। शोभा यात्रा के मार्ग में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला की ओर से शोभा यात्रा के मार्ग में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लंगर लगाए गए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने भक्तों में लंगर वितरित करने की सेवा की और फगवाड़ा शहरवासियों सहित समूह देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई दी। ਅੱਜ महाशिवरात्रि ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ शोभा यात्रा ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ पूरा फगवाड़ा ਜਿਹੜਾ महामाई के हर हर महादेव के नाम सारे नाम हो गया और वो शोभा यात्रा के प्रति आज उन्होंने स्वागत खड़े और एक श्रद्धा भावना लैके तो सारे आज महाशिवरात्रि के मौके पर सारे लख लख बधाई और नाल सब सारे
कि वो अपनी किरपा बना के रखे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ, शुभकामना भी और सारिਆਂ ਨੂੰ फिर भी एक बार महाशिवरात्रि के मौके पर सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर। गोराया में मोटरसाइकिल और स्कूटी में हुई भीषण टक्कर, 2 नाबालिगों की हुई मौत। मोहाली में जेसीबी के नीचे आने से 2 वर्षीय मासूम की गई जान। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जालंधर के गांव में सरहाली के तालाब में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इलाके में सनसनी फैली। इसी के साथ अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।